يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا مرض أخبار الله هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعة ومحبين وفيهم محمود إلا مخرج الله عما ولا مذموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجاته وقال علي إذا والله كنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. مولانا موصوف نے باقاعدہ اس نورانی مجلس کا آغاز باقاعدہ حدیث کے ساتھ کر دیا. جب حدیث کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو مجھے 4 مصرے یاد آ گئے بیوی فاطمہ زہرا کے حوالے سے. ایک صلوات پڑھتی ہے محمد والے محمد. اس وقت زما بھائی کو میں آگے اس لیے نہیں بول سکتا ہوں کیونکہ وہ باقاعدہ لائیو بھی دکھاتے ہیں پروگرام میں, اس لیے میں حضرت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. آگے میرے بڑے بھائی ہیں سلام پیپر محمد والے محمد. آئیے میں گفتگو کا آغاز کر دوں, زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کہ قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد, قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد. پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ تو رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا. اتنی پسند آ گئی تسبیح فاطمہ, نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا. اتنی پسند آ گئی تسبیح فاطمہ. اور کبھی کسی ناظم, کسی شاعر, کسی عالم دین کو یہ نہیں بولنا پڑے گا اگر آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ مجلس ہو رہی ہے تو اندر تشریف لائیں. میں 4 مصرے اکثر پڑھتا ہوں, یہ 4 مصرے جو ہزار بار ہیں استعمال کروں, باقاعدہ مجلس شروع ہو چکی ہے. شاعر نے کہا کہ جان پہ جان فشانی کے لیے دوڑی تھی, جان پہ جان فشانی کے لیے دوڑی تھی, رب اکبر کی نشانی کے لیے دوڑی تھی. تو اس طرح مجلس و محفل کے لیے دوڑا کرو جس طرح حاضر پانی کے لیے دوڑی تھی. جان پہ جان فشانی کے لیے دوڑی تھی. آئیے ایک دم وقت نہ لیتے ہوئے میں جناب صادق آدمی صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ ہے مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات کا استقبال نعرہ صلوات سے کیجیے. بر محمد والے محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد والے محمد والے محمد صلی اللہ کہ جو دم نکلے محبت میں علی کی, جو دم نکلے محبت میں علی کی, بدل جاتی ہے رنگت زندگی کی. جو دم نکلے محبت میں علی کی, بدل جاتی ہے رنگت زندگی کی. تو ہمیں رات آ گئی قربت ہماری, زیارت ہو گئی مولا علی کی. ہمیں رات آ گئی قربت ہماری, زیارت ہو گئی مولا علی کی. ایک سلوات پڑھیے بر محمد والے کہ ساری دنیا کو یہ حیرت ہے کہ ایسا کیوں ہے, ساری دنیا کو یہ حیرت ہے کہ ایسا کیوں ہے. ہاتھ کٹ کر بھی میرے ہاتھ میں دریا کیوں ہے. ساری دنیا کو یہ حیرت ہے کہ ایسا کیوں ہے, ہاتھ کٹ کر بھی میرے ہاتھ میں دریا کیوں ہے. تو چھاپ کر اپنے غریباں میں ذرا سوچ شدید, چھاپ کر اپنے غریباں میں ذرا سوچ شدید. میرا پرچم تیرے دربار سے اونچا کیوں ہے. چھاپ کر اپنے غریباں میں ذرا سوچ شدید, چھاپ کر اپنے غریباں میں ذرا سوچ شدید. میرا پرچم تیرے دربار سے اونچا کیوں ہے. تو گر تجھے پر محمد والے محمد سلوات صلی اللہ محمد والے محمد. دنیا کو یہ حیرت ہے کہ ایسا کیوں ہے, ہاتھ کٹ کر بھی میرے ہاتھ میں دریا کیوں ہے. چھاپ کر اپنے غریباں میں ذرا سوچ شدید. میرا پرچم تیرے دربار سے اونچا کیوں ہے. تو گر تجھے سارے
मुसलमानों ने माना है अमीर। कर तुझे सारे मुसलमानों ने माना है अमीर, ये बता तेरा मुखालिफ तेरा बेटा क्यों है? वाह 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 कर तुझे सारे मुसलमानों ने माना है अमीर, कर तुझे सारे मुसलमानों ने माना है अमीर, कर तुझे सारे मुसलमानों ने माना है अमीर, ये बता तेरा मुखालिफ तेरा बेटा क्यों है? तो तू तो है सारे जमाने का बड़ा तीरंदाज, तू तो है सारे जमाने का बड़ा तीरंदाज, क्या सबब है तेरे हाथों में ये राशा क्यों है? नारे हैदरी! तू तो है सारे जमाने का बड़ा तीरंदाज, क्या सबब है तेरे हाथों में ये राशा क्यों है? तो हुरमुला से अली असगर की हंसी ने पूछा, हुरमुला से अली असगर की हंसी ने पूछा, तू अगर जीतने आया है तो रोता क्यों है? वाह 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 हुरमुला से अली असगर की हंसी ने पूछा, तू अगर जीतने आया है तो रोता क्यों है? तो है जिगर बंदे नबी वारिसे तत्हीर हुसैन, है जिगर बंदे नबी वारिसे तत्हीर हुसैन, एक नजीस इब्ने नजीस उससे उलझता क्यों है? है जिगर बंदे नबी वारिसे तत्हीर हुसैन, एक नजीस इब्ने नजीस उससे उलझता क्यों है? और तू जिसे लागरो लाचार समझता है यजीद, तू जिसे लागरो लाचार समझता है यजीद, उसकी हैबत से तेरा तख्त लरजता क्यों है? तू जिसे लागरो लाचार समझता है यजीद, उसकी हैबत से तेरा तख्त लरजता क्यों है? तो तेरा दरबार तेरा तख्त सिपाही तेरे, तेरा दरबार तेरा तख्त सिपाही तेरे, हो काफिर तेरे माथे पे पसीना क्यों है? तेरा दरबार तेरा तख्त सिपाही तेरे, खौफ का फिर तेरे माथे पे पसीना क्यों है? बस मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। सल्ले अला जैसे तालिक आदमी साहब बार गाते मौला में नजराना की तरफ से यही उम्र में आप लोग जब ताज़ा तहसीन से नवाजते हैं बच्चों को तो हौसला बढ़ता है। जब हम लोग इतने बड़े थे तो हमारे बुजुर्ग थे, हम लोग आज लोग थोड़ा बहुत पढ़ रहे और ये आप लोग भी दे रहे हैं। एक सलाह पढ़ती है मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्योंकि वहाँ के हवाले से ये मजलिस है। तो एक मतलब मैं पेश कर दूँ, नजर सिर्फ पर उनका कहते हैं कि क्योंकि बिरादर अजीज को बुला रहा हूँ और जिनके हर जगह मैंने पढ़ा भी, उनके साथ कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। तो मुनव्वर राना ने कहा, कहते कि इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। और एक मतलब कि मुख्तसर देखिए माँ की दुआ देते रहे। मैं ये नहीं चाहता हूँ बस आप सुने, इसी का जवाब मरहुमा को मिलेगी। मुख्तसर उन्होंने मतलब कहा कि मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए। एक सवाल और पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और है मजमा, इतना ही मजमा मौला सलामत रहे। हजारों पे आप लोग भारी हैं जब आप लोग, क्योंकि वाह भी हमारी है आह भी हमारी है। फराज मौला हो रहा है, वाह आप लोग जो है अपने भाई को बुलाने से पहले 4 मिनट के हैदर के मुस्तफा के हुसैनो हसन के हैं, हैदर के मुस्तफा के हुसैनो हसन के हैं। हम लोग भी फकीर बड़े बागपन के हैं। तो कुरान जाके तू अबू तालिब को कर सलाम, सबसे बड़े बुजुर्ग यही पंजतन के हैं, सबसे बड़े बुजुर्ग यही पंजतन के हैं। कुरान जाके तू अबू तालिब
इनको कर सलाम। सबसे बड़े बुजुर्ग यही पंजतन के हैं। राजा जी जनाब नूर मोहम्मद आदमी साहब से इल्तिमास कर रहा हूँ, नाज़र हैदरी। मिलजुल के सलात पढ़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार से ये दुआ है, आज जो भी फ़ज़ाइल मसाइल जो भी मौला का पढ़ा जाए मरहुमा के नाम अमाल तक पहुँचा दे मौला, यही हमारी दुआ है। मिलजुल के बाबा से गलत जवाब पढ़ेगा। दो शेर पे से खिदमत है। रोशनी का जहाँ खजाना है, समाप्त कर देंगे, पसंद आएगा बोलिएगा जरूर। रोशनी का जहाँ खजाना है, मेरे सरवर का सताना है। शेर देखे जाता है। सोचता हूँ मैं फातिमा ज़हरा, सोचता हूँ मैं फातिमा ज़हरा, तेरा रोज़ा मुझे बनाना है, तेरा रोज़ा मुझे बनाना है। घर जलाया था किसने ज़हरा का, उसका पुतला हमें जलाना है, उसका पुतला हमें जलाना है। मिलजुल के बाबा से पहले मुसलमान पढ़िए। मोहम्मद। तीन शेर पति से क्षमा फरमा लें, क्योंकि हमारा भतीजा इतना बेहतरीन अंदाज में पढ़ा है कि उसके आगे हम सोच रहे हैं कि हम पढ़ें तो क्या पढ़ें, क्योंकि चचा ने निहाल तक छोड़ा था, निहाल ने अली सादिक तक, अली सादिक का बेटा इंशाअल्लाह वहां तक पहुंचेगा। मिलजुल के बाबा ने बुलंद सलवात पढ़े, ये सिलसिला चालू है। समाप्त फरमाएंगे इनसे कि पूछ लो मरियम से खुद उनका मुक़द्दर कौन है, पूछ लो मरियम से खुद उनका मुक़द्दर कौन है। औरतों में फातिमा ज़हरा से बेहतर कौन है, औरतों में फातिमा ज़हरा से बेहतर कौन है। फिर मौलाना फरमाए कि देखने आती है ज़हरा मजलिस शब्बीर में, देखने आती है ज़हरा मजलिस शब्बीर में। कौन है मजलिस के अंदर और बाहर कौन है, पूछ लो मरियम से खुद उनका मुक़द्दर कौन है। इसे बताने का मतलब है कि छोड़कर फर्शे अज़ा, इसरत भाई आप बोल नहीं रहे, आगे वाला कहना, छोड़कर फर्शे अज़ा बाहर खड़े हो किसे लिए, छोड़कर फर्शे अज़ा बाहर खड़े हो किसे लिए। क्या खबर तुमको नहीं मजलिस के अंदर कौन है, पूछ लो मरियम से खुद उनका मुक़द्दर कौन है। और हज़रत
मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मेरा जल्दी जनाबे नूर मोहम्मद साहब मेरे बड़े भाई और पढ़ रहे थे मौलाना सहदेव को, और बाकी ये बुजुर्गों की देन है, इन्हीं लोगों ने पढ़ाया हम लोगों को। ऐसी बात नहीं है कह रहे थे कि हम मैं क्या पढ़ूं, बाप बाप ही होता है, पढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे बड़े भाई हैं, एक तरफ पैगम्बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, और अच्छा पढ़ते आ रहे थे। उन्होंने पढ़ा तो मुझे 2-3 शेर याद लगे, आप लोग को ज्यादा वक्त ना लेते हुए अगले शायद आपके हवाले करूं कि यूं तो अली की होती है मिंबर से बातचीत, क्योंकि मेरा दिल इज्जत भाई भी आ चुके हैं, बस 2 शायर हमारे दरमियान और हैं कि यूं तो अली की होती है मिंबर से बातचीत, यूं तो अली की होती है मिंबर से बातचीत, मीसम ने की है दाल के ऊपर से बातचीत, मीसम ने की है दाल के ऊपर से बातचीत, क्षेत्र की गूंगा बना के छोड़ दिया हज तक उसे, आया था जुल्म करने 72 से बातचीत। सलाम बताइए आप लोग, आया था जुल्म करने 72 से बातचीत। क्षेत्र ने रवि भाई की जब चाहते थे नाना का लहजा सुनाई दे, जब चाहते थे नाना का लहजा सुनाई दे, सरवर बुला के कहते थे आपको से बातचीत। सलाम बताइए, अच्छा सुन रहे, जब चाहते थे नाना का लहजा सुनाई दे, सरवर बुला के कहते थे अकबर से बातचीत। आखिरी शेर कि बच्ची ये जानती थी कि जिंदा है हर शहीद, बच्ची ये जानती थी कि जिंदा है हर शहीद, करता है वरना कौन कटे सर से बातचीत। सलाम बताइए आप लोग, बच्ची ये जानती थी कि जिंदा है हर शहीद, करता है वरना कौन कटे सर से बातचीत। आइए मैं बिरादर से इल्तिमास करूं कि आए जनाब पर मोहम्मद वाले मोहम्मद दमन साहब, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। के आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले, के आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले, बस मिले आले मोहम्मद के घराने वाले, बस मिले आले मोहम्मद के घराने वाले। तू है रहमान रहीम और तू ही है गफ्फार, ये समझते नहीं काफिर के घराने वाले, ये समझते नहीं काफिर के घराने वाले। आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले, बस मिले आले मोहम्मद के घराने वाले। ये करो शुक्र कि ज़हरा ने इशारा ना किया, ये करो शुक्र कि ज़हरा ने इशारा ना किया, वरना जल जाते दर ज़हरा जलाने, वरना जल जाते दर ज़हरा जलाने वाले। मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि जिसको
کو میرے علی سے کوئی واسطہ نہیں، کہ جس کو میرے علی سے کوئی واسطہ نہیں، مشکل تو ان کے پاس ہے، مشکل تو ان کے پاس ہے، مشکل کشا نہیں، جس کو میرے علی سے کوئی واسطہ نہیں، اور جینا میرا حسین ہے، مرنا ہمیں حسین پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو میرے علی سے کوئی واسطہ نہیں، مشکل تو ان کے پاس ہے، مشکل کشا نہیں، جس کو میرے علی سے کوئی واسطہ نہیں، اور جینا میرا حسین ہے، مرنا ہمیں حسین، کہ جینا میرا حسین ہے، مرنا ہمیں حسین، پچھتائے وہ جن کے یہاں کربلا کوئی واسطہ نہیں، محمد وآل محمد صلی اللہ ماشاءاللہ بڑا سلام تو پھر ایک جوڑا سلوات پڑھ دیا. دیکھیں تین تین عالم دین ہمارے درمیان آ گئے ہیں، ان کی زیارت بھی کرنا بھی عبادت ہے. سلام پڑھی اور محمد عالم آخری شاید میں زیادہ وقت نہیں چکا، آپ لوگ عبادت میں بیٹھے ہیں. بس ہمارے بڑے بھائی بھوپے حیدر کے چراغوں کو جلائے رکھیے، بھوپے حیدر کے چراغوں کو جلائے رکھیے، چور ہرگز بھی اجالے میں نہیں آئیں گے. بھوپے حیدر کے چراغوں کو جلائے رکھیے، چور ہرگز بھی اجالے میں نہیں آئیں گے. تو جتنے مجرم ہیں انہیں ڈھونڈ کے لانا ہوگا، خود سے چل کر کبھی تھانے میں نہیں آئیں گے. آئیں گے تو یا نبی آپ کو داماد بنانے والے بیٹیاں دیں گے، جنازے میں نہیں آئیں گے. بیٹیاں دیں گے جنازے. کھلا پڑے پر محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ بہت اچھا سن رہے ہیں. سلامت رکھے کہ شادماں ہم سے بھی اللہ پیغمبر ہوتے، شادماں ہم سے بھی اللہ پیغمبر ہوتے، ہم بھی پیشانی اسلام کے جھومر ہوتے، ہم بھی پیشانی اسلام کے جھومر ہوتے. تو یہ تمنا ہی رہی سارے عرب کے دل میں، کاش ہم بھی ابو طالب کے برابر ہوتے، کاش ہم بھی ابو طالب کے برابر ہوتے. آئیے برادر عزیز جناب عشرت پیداواری صاحب سے التماس کر ہو کے آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات کا استقبال علیہ صلوات کیجیے پر محمد و آل محمد صلی اللہ. اجل کو گلے لگا اجل کو گلے لگانے سے علی
देख तो लूंगा इसी बहार और हमेशा होता रहे कब्र में सवालो जवाब कि मौला उठ के न जाए मेरे सहारे से कि मौला हम अपने दिल का हीना हमेशा पास रखते हैं। हम अपने दिल का हीना हमेशा पास रखते हैं कि इसमें रोज़े सिफ्ते शहे लौला रखते हैं। हुई है जज्ब इसमें सजदे शबीर की खुशबू कफन में इसलिए हम करबला की कफन में इसलिए हम करबला की रखते صلی اللہ محمد نام علی جو نہ جانے لب سے نکل گیا بے ساختہ حیات کا چہرہ بدل گیا بے ساختہ حیات کا چہرہ بدل گیا نام علی جو نہ جانے لب سے نکل گیا میں سوچتا ہوں بڑھ گئی اب میری زندگی دنیا سمجھ رہی ہے میرا دم نکل گیا دنیا سمجھ رہی ہے میرا دم صلی اللہ محمد وعلی محمد سارے انسان دلوں جان سے بارے آنکھ سے اشکوں کے سیلاب نیند آ رہی ہے کی جاری دیتے
देखे राजा तो कभी हमने भिखारी देखे, मौलवी देखे कभी हमने पुजारी देखे। सबको है जिसकी तलब उसको जिना कहते हैं, जिसके कदमों में जिना है उसे माँ कहते हैं, जिसके कदमों में जिना है उसे माँ कहते हैं। माही बच्चों के लिए रहमत खालिक का नुज़ूल, मुख्तसर भी जो करूं अर्ज़ तो हो जाएगा तू। माँ ही सिखलाती है औलाद को जीने के उसूल, माँ की आगोश है औलाद का पहला स्कूल। माँ की आगोश है औलाद का पहला स्कूल, माँ ही देती है सबक कलमे तैयब क्या है, माँ ही बच्चों को बताती है कि मजहब क्या है, माँ ही बच्चों को बताती है कि मजहब क्या है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक सवाल पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद तकबीर के आदमी दिन है। आप लोग आगे आइए भाई, आप लोग को देख लिया मैंने। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आप के दरमियान रहूंगा इंशाल्लाह। और पढ़ रहे थे माँ के हवाले से, मुझे 4 मिसरे पक्की साहब के याद लगे। कहते हैं कि भूख इंसान को शैतान बना सकती है, भूख इंसान को शैतान बना सकती है, भूख इंसान को शैतान बना सकती है, माँ की लोरी है जो भूखा भी सुला सकती है, भूखा भी सुला सकती है। भूख इंसान को शैतान बना सकती है, माँ की लोरी है जो भूखा भी सुला सकती है। तो मशवरा ये है मेरे सब्र पे हमला मत कर, इस हिमाकत में तेरी जान भी जा सकती है, हिमाकत में तेरी जान भी जा सकती है। मशवरा ये है मेरे सब्र पे हमला मत कर। उसी तरह उसी तवानाई से मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु भूख इंसान को शैतान बना सकती है, भूख इंसान को शैतान बना सकती है, माँ की लोरी है जो भूखा भी सुला सकती है। मशवरा ये है मेरे सब्र पे हमला मत कर, इस हिमाकत में तेरी जान भी जा सकती है, इस हिमाकत में तेरी जान भी जा सकती है। 5 मिनट याद आ गया कि हाँ इस दामिने देखिए नए 5-6 शेर पढ़ूंगा और भाई हमारे आशीर्वाद देंगे, वहीं से दुआ देंगे। एक सलाम पढ़ूंगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, हाँ हर लैंग्वेज में बोलना चाहिए। हाँ इस दामिने फतह गुले तर भी तो हो सकता है, ज़मीने फतह गुले तर भी तो हो सकता है, लश्करे शाह में अस्कर भी तो हो सकता है। अच्छा सुनते हैं आप लोग, लश्करे शाह में अस्कर भी तो हो सकता है। तो पुरुष मीसम से जिसे दाल समझता है जहां, पुरुष मीसम से जिसे दाल समझता है जहां, मदह हैदर कौमी पर भी तो हो सकता है। सलाम बताइए, पुरुष मीसम से जिसे दाल
मोती भाई मदे हैदर का मिंबर भी तो हो सकता है। अभी मेरे भाई नूर मोहम्मद भाई लोगों को बोल रहे थे कि अंदर चले आइए, शेर में बोल रहे थे जो बाहर टहल रहे हैं। अब शेर सुनिए कि पूछ मीसम से जिसे दार समझता है जहां, मदे हैदर का वो मिंबर भी तो हो सकता है, तो जिक्र हैदर जिसे अच्छा नहीं लगता वो शख्स मजलिस शाह से बाहर भी तो हो सकता है। शाह से बाहर भी तो हो सकता है। देख कर जिसको है शर्मिंदा जमाले यूसुफ, देख कर जिसको है शर्मिंदा जमाले यूसुफ, सामने चेहरे अकबर भी तो हो सकता है। अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, सामने चेहरे अकबर भी तो हो सकता है। अब आप लोग जो इतनी देर से बैठे हैं, आप लोगों के आंसू की कीमत क्या है? 3 शेर और। अच्छा सुने, शेर सुने, एक सलवार जोरदार पढ़ दिया जिसको है शर्मिंदा जमाले यूसुफ, सामने चेहरे अकबर भी तो हो सकता है, तो हम में सरवर की मेरी आंखों से बहता आंसू मेरे आमाल से बेहतर भी तो हो सकता है। मेरे आमाल से बेहतर भी तो हो सकता है। मेरे आमाल से बेहतर भी तो हो सकता है। नूर मोहम्मद भाई कि जिसको सूरज की निगाहों ने भी सूरज समझा, जिसको सूरज की निगाहों ने भी सूरज समझा, नोके नेज़ा पे कोई सर भी तो हो सकता है। नोके नेज़ा पे कोई सर भी तो हो सकता है। नोके नेज़ा पे कोई सर भी तो हो सकता है। नोके नेज़ा पे कोई सर भी तो हो सकता है। तो ये जो पानी से नजर आता है सारा लश्कर, ये जो पानी से नजर आता है सारा लश्कर, खौफे अब्बास से पत्थर भी तो हो सकता है। खौफे अब्बास से पत्थर भी तो हो सकता है। तो कतरे अश्क को कतरा नहीं समझे दुनिया, कतरे अश्क को कतरा नहीं समझे दुनिया, एक कतरे में समंदर भी तो हो सकता है। एक कतरे में समंदर भी तो हो सकता है। कतरे अश्क को कतरा नहीं समझे दुनिया, एक कतरे में समंदर भी तो हो सकता है। 2 शेर मेरे अजीजों, 2 शेर बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने कि एक कतरे में समंदर भी तो हो सकता है। तो जॉन को खून का छिड़काव तो कर लेने दो, जॉन को खून का छिड़काव तो कर लेने दो, 10 खुशबू से मुअत्तर भी तो हो सकता है। 10 खुशबू से मुअत्तर भी तो हो सकता है। बस आखिरी शेर किबला आपको नजर कर दूं कि हाथ रोकोगे अगर, हर मौलाई की आगू पेश कर रहा हूं कि हाथ रोकोगे अगर दिल को मेरा धड़केगा, हाथ रोकोगे अगर दिल को मेरा धड़केगा, मातमे से मेरे अंदर भी तो हो सकता है। मातमे से मेरे अंदर भी तो हो सकता है। हाथ रोकोगे, आखिरी शेर, हाथ रोकोगे अगर दिल तो मेरा धड़केगा, मातमे से मेरे अंदर भी तो हो सकता है। किबला बैठे हैं, बस आखिरी शेर कि सिर्फ इब्लीस ही क्यों मूरिद इल्जाम रहे, सिर्फ इब्लीस ही क्यों मूरिद इल्जाम रहे, कोई इब्लीस से बढ़कर भी तो हो सकता है। बताइए, हाथ रोकोगे अगर दिल तो मेरा धड़केगा, मातमे से मेरे अंदर भी तो हो सकता है। आइए भाई ने हुक्म किया कि ये 4 मित्र से किबला कहता है कि कुफ्र की भीड़ में ईमान का पुख्ता होना इतना आसान नहीं होता खदीजा होना। कुफ्र की भीड़ में ईमान का पुख्ता होना इतना आसान नहीं होता खदीजा होना। तो जिसके एहसान का ममनून हो दीन इस्लाम, ज़ेब देता है उसे मादर ज़हरा होना, ज़ेब देता है उसे मादर ज़हरा होना। आइए इतनी आशा के साथ खतीब मुअत्तल, खतीब अहले बैत, इज्जत माफ अलीना मौलाना अली असगर हैदरी साहब किबला से इल्तिमास कर रहा हूं कि आए तो अपनी तकरीर का आगाज करें। आप बता दो कैसे बना रहे बात कहिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु दुश्मनों पर
جمال لانا نعرہ حیدری نعرہ حیدری جنت المعلی و جنت البقیع کی جلد جلد خوبصورت تعمیر کے لیے آواز بلند صلوات محمد آل محمد گزارش ہے کہ ایک بار سورت حمد اور 3 بار سورت اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مقبورہ انیس فاطمہ بنت زین العباد خان، مرحوم زین العباد خان ابن مظہر حسین خان، مولانا مرحومہ شمیم بانو بنت صفت حسن مرحوم ظاہر حسین ابن امانت حسین، انوری بیگم بنت ظاہر حسین، ام البنین زوجہ ظاہر حسین، شمیم حیدر ابن ظاہر حسین، حسن اصغری بنت ظاہر حسین، شفیع الحسن ابن علی احمد خان، حماد خان ابن صفاللہ خان، علی احمد ابن صفت حسن، حسین احمد ابن صفت حسن، ان ارواح مومنین و مومنات کو ایصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ قد أفلح من زكاها۔ صلوات پر محمد والے بزرگان ملت، برادران ایمان، موالیان مولا کائنات اور اس فرش اعلیٰ پہ تشریف فرما قوم و ملت کے محترم المقام علماء کرام، خدمت عالی میں اس مجلس اعلیٰ کے لیے جس کی غایت ایصال ثواب ہے، جس کا مقصد حصول حسنات ہے، اکتساب علم ہے، تشریحات قرآنیہ ہے، تفہیم تفسیر ہے، یہ تمام چیزیں اس مجلس کا مقصد ہے۔ لہذا اسی کے پیش نظر وہ قرآن حکیم جو 114 سوروں پر مشتمل ہے، ہم ان مجلسوں میں قرآن مجید
مجید کی تفسیر جانتے ہیں، تفسیر سمجھتے ہیں۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ مسجد ہے، جہاں قرآن سمجھا جاتا ہے وہ مجلس ہے نا۔ یہ تمام چیزیں بڑی آسانی سے خدمت عالی میں پیش کروں گا، مگر یہ خالی جگہ تھوڑا بھر لیں۔ اگر مزاج معلّہ میں بار نہ ہو اور ماشاءاللہ یہ چاہتے ہیں کہ مجلس سجی ہوئی رہے، کیونکہ زینو مجالسکم تو زینت کا حکم ہے، لہذا اس زینت کو برقرار رکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اپنے آگے کی جگہ دے دیں۔ ہاں دوسرے کو بھیج دیں، ماشاءاللہ آ جائیں، صلوات پڑھنے مل کر محمد والے سلامت رہے۔ بڑی تیزی سے الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے اسی لیے کہ یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ قرآن میں 114 سورے ہیں اور کم از کم ہر محرم میں ہم 114 مجلس سنتے ہیں۔ یہ پیش نظر ہے، ذہن میں رہے، جتنے ایام اللہ گزرتے ہیں کم از کم ہم 114 مجلسیں سنتے ہیں۔ یہ 114 مجلسیں تشریح ہوتی ہیں 114 سوروں کی۔ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ قرآن سمجھنے کی کوئی دوسری جگہ ہے بھی نہیں۔ اگر کوئی دوسری جگہ ہے تو آپ مجھے اس کا ایڈریس بتا دیجیے کہ کوئی اور جگہ ہے جہاں قرآن سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ نے سمجھا دیا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کے معنی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ پھر کہا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یا وہ جانتے ہیں جو علم میں ہے۔ ایک بات تو واضح ہو گئی، اب یہ استدلال کا موقع نہیں ہے کہ میں دلیلیں پیش کروں، مگر آسانی سے گزر کر ایک لفظ میں جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے معنی قرآن بتانے کا حق یا اپنے پاس رکھا یا انہیں دیا جنہیں اپنے پاس سے بھیجا۔ بڑی توجہ ہے۔ کئی تیسری جگہ معنی قرآن، تفسیر قرآن، تفہیم قرآن، ترجمہ قرآن، تشریح قرآن، ان سب کا حق کہیں اور نہیں رکھا۔ کہاں رکھا؟ بڑی توجہ ہے، یا اپنے پاس رکھا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہ آیت قرآنیہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے واضح اور کلیئر کٹ کہا ہے کہ اس کی میننگ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ جانتے ہیں جو علم میں ہے۔ وہ راسخون فی العلم ہے۔ خدا کی قسم پوری کائنات کا سیٹ گدائی لیے ہوئے ان 14 کے دروازے پہ ہر دور میں ملی۔ ہر آنے والا طلب لے کے آیا اور یہاں آتا جاری رہی، جس کی جتنی طلب رہی انہوں نے پوری۔ اب ظاہر ہے کہ اب ہمارے سامنے بظاہر وہ ہستیاں نہیں ہیں جن سے ہم ڈائریکٹ معنی قرآن لے تو بڑی توجہ رہے۔ تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے فرش عزا بچھا کر مجلس کا انعقاد کا سلیقہ دے کر یہ بتا دیا کہ دیکھو مجلس عزا کے لیے جب فرش بچھاؤ گے تو تم بعد میں آؤ گے، راسخون فی العلم پہلے آئیں گے۔ یہ آپ کا حق ہے۔ یہ سلوات پڑھے میرے محبت والے۔ یہ ہے نا، یہ یوں ہی خالی نہیں ہے کہ معصوم بھی آتے ہیں، شہزادی بھی آتی ہے۔ یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جگہ وہ ہے جہاں سے معنی قرآن بتائے جاتے ہیں، اور اللہ نے یہ بتانے کا حق کسی غیر کو نہیں دیا۔ لہذا فرش عزا پہ انہیں بھیجا کہ تم بعد میں آؤ گے، یہ پہلے آئیں گے، کیونکہ تم طلب لے کے آؤ گے، یہ عطا لے کے آئے ہیں۔ اب یہ جملے اگر پہنچ کے جائیں تو میں سمجھ جاؤں، ورنہ ماشاءاللہ کسی مجلس کو خطیب کے پہنچانے سے پہلے خطیب کو کیسا پہنچایا گیا ہے یہ زیادہ معنی رکھتا ہے، کیونکہ پھر وہ مجلسیں نہیں سنی جاتی۔ یہ بہت لازم ہے کہ خطیب کو کیسا پہنچایا گیا۔ وہ خطیب منبر سرونی
उसे भी पहुंचाने वालों ने कैसा कैसा पहुंचाया, बड़ी तवज्जो है। मगर ये जरूर है कि अगर मिंबर पर आने के बाद काम खतीब मिंबर सलूनी का हो रहा है तो कोशिश इस बात की हो कि लोग काम शाम वाला न करें। ये जो बात बड़ी बहुत बड़ी बात जो आप तक लफ्जों में मैं चाहता हूं, देखिए जो बातें की है और बिल्कुल हट के गुफ्तगू करूं। ये इसलिए ये जो बात कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हमारे उलमा नहीं है, उलूम नहीं है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सरनामा इकराम के तौर पर आयत पेश करके उलमा के दरमियान रहकर, आजादारी में रहकर, मजालिस में बैठकर, सुनकर, समझकर, हर जगह ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि जो बात कहने जाऊंगा उससे थोड़ा सा आपको भी इंशाअल्लाह इस बात का एहसास होगा कि गुफ्तगू रसूमात से मुनहरिफ है। बड़ी तवज्जो है भाई, ये खाना पका के नजर दे देना वो भी काम हो गया, जरा सैयदा की कहानी सुन लेना तभी तबर्रुक बन गया। अगर तबर्रुक खाने को बनाने ही के लिए प्रोग्राम है तो हर तरीके से बन जाएगा, लेकिन अगर जिंदगी बनाने के लिए है तो लाजिम है कि हमारी मजलिसों का रुख उस तरफ हो जो जिंदगी साज हो, और जिंदगी साज मजलिसें उसी वक्त बन सकती है कि जब सीरत आले मोहम्मद को कुरान की रोशनी में पेश किया जाए। कुरान जब आप कहते हैं पूरा कसीदा है आले मोहम्मद का, तो वो आयतें जो कहती है अकीमुस सलात वो क्यों समझ में नहीं आती? वो आयतें जो कहती है अकीमुस ज़कात वो क्यों हल्की लग रही है? इसका मतलब ये है कि जब जब ज़कात अली से छोड़ के देखा जाएगा तो हल्का लगेगा। आगे पहुंच जाए तो खुदा की कसम थोड़ा चेहरे होने से ये सांस दिला दे कि हाँ बात पहुंच रही है। बाकी आप बैठे रहे, मुझे इससे गलत नहीं है कि आप दाद जाने के, लेकिन इससे गलत है कि चेहरों से इशारे दे दे कि हाँ गुफ्तगू पहुंच रही है। तो अगर पहुंच रही है तो इस नहज पर गुफ्तगू करते हुए आइए। मैंने ये कुरान मजीद के सूरत शम्स इसीलिए मैंने इंतखाब किया, और जाहिर है कि ये आयतें चूंकि इसकी तिलावत कम होती है तो मारिफत भी कम, या तो बचपन में जब कुरान की तिलावत का सलीका सिखाना होता है तो अम्मा पारे में सूरह शम्स पढ़ा जाता है, और जैसे ही बचपना रुखसत हुआ अम्मा 12 से आगे बढ़े तो अब या ईद में सूरत शम्स पढ़ा जाता है या बकरीद में। अभी ईद में पढ़ा था, अब बकरीद फिर आ रही है। यही है ना जिंदगी में, या ईद में सूरत शम्स या बकरीद में। ईद में पढ़ा गया तो सूरा ज़बान पर, तसव्वुर में समैया, बकरीद में पढ़ा गया तो सूरा ज़बान पर, तसव्वुर में बोटियां। बड़ी तवज्जो है। तो जाहिर है कि नमाज अदा करने के लिए सूरह पढ़ना और है, हक़ आले मोहम्मद की मोहब्बत अदा करने के लिए कुरान पढ़ना और है। बड़ी तवज्जो है, ये कुरानी है, हर जगह है। कोई ताबीज बना के बेच रहा है, हर जगह है, जो चाहता है कुरान के साथ सलूक कर रहा है, लेकिन दूसरों के सलूक को देखने से पहले ये देखना पड़ेगा कि हम कुरान के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। बड़ी तवज्जो है, हमारा सलूक कुरान के साथ क्या है? ऐसा कि अगर गरीब हैं तो अब्बा का खुद पढ़ेंगे, और पैसे वाले हो गए हैं तो बुला के पढ़वाएंगे, क्योंकि पैसा आ जाने के बाद कुरान पढ़ना गरीबों की अलामत समझा जाता है। बड़ी तवज्जो रहे, कितना गरीब है ये जहन जिसने कम से कम ये कह तो दिया अमल से कि कुरान हमारे लिए नहीं गरीबों के लिए है। कितना गरीब है कुरान आप देख ले, मदरसे में इतना गरीब कि 100 रुपए फीस महाना नहीं निकलती। कितना गरीब है कुरान।
बड़ी तवज्जो है, क्या सुलूक है हमारा कुरान के साथ। हम उन अहले ईमान को आज क्यों खिराज दे रहे हैं? पूरी दुनिया की सुपर पावर ताकतें आज क्यों पसपा है? इसलिए कि कुरान उनके घरों में नहीं था, उनकी निगाहों में था। सलाम पढ़ने में क्या मोहम्मद वाले घट होने लगती हैं तो वो मुश्किल हो जाती है, और हर मुश्किल यानी से दूर होती है। ये तो हमारे यहाँ और ये माँ ने सिखाया कि इशरत साहब यही तो पढ़ रहे थे कि मज़हब माँ ने सिखाया। हमारे यहाँ मज़हब भी है तो मादरी है। कहाँ पे मादरी में कितनी लज्जत है, जबान मादरी, जायका मादरी। हमारे यहाँ विलायत भी मादरी है। मैं क्या करूँ, कैसे आप तक पहुँचा दूँ ये जुमला जो मैंने कहा। ये सारी चीजें आप देखें। अब मैं आ रहा हूँ फिर कुरान की तरफ। तो सूरत शम्स है ना, नमाज़े ईदैन में पहली रकत में सूरत आला और सूरत शम्स ये रखा गया, और दोनों में नफ्स की बात की गई। एक में कहा गया कद अफ़लह मन ज़क्काहा, और एक में कहा गया कद अफ़लह मन तज़क्का। दोनों दरमियानी सी बात। खुदा की कसम जरा मंजिल को मुलाहिज़ा फरमाएं। कद अफ़लह मन ज़क्काहा, कद अफ़लह मन तज़क्का, ये तो हो गई ईद बकरीद की। और जो जुम्मा का जुम्मा है, जुम्मा तो मैं अपने यहाँ के लिए कहता हूँ ना, जुम्मन के यहाँ तो जुम्मा ही होगा। ठीक है, माशाल्लाह। ये जगह अक्सर जो है इसकी आवाज़ें तेज हो जाती है। बड़ी तवज्जो रहे, बड़ी तवज्जो खुदा की कसम। मैं चाहता हूँ क्योंकि लोग मुतवज्जह हो जाएंगे ना, तो इतना तो जानता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने इतना भी कहा तो जाने के बाद तबसरा होगा, देखा, लेकिन जो पूरी मजलिस है वो नहीं दिखाई गई। यहीं से समझ में आ गया कि आयब का दिखाना और है, खुसूसियात का दिखाना और है। इस्लाम जिसे कहता है छुपाओ वो दिखा रहे, और जिसे कहता है दिखाओ वो छुपा रहे। भैया छुपाओ सबके लिए कह रहा है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी कह रहा है, आपके लिए भी, आपके लिए भी। ऐब छुपाओ, नेकियां दिखाओ, अच्छे खसाइल का तज़किरा करो, नेकियों का जिक्र करो। वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, उसे बयान करते रहो। कहा जा रहा है तो हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें कि हम अगर किसी को कुछ कह रहे हैं तो खुद जायजा लें, और फिर जब कहने के लायक नहीं है तो क्यों कहे? तो फिर हम भी वही हो गए कि जो अली की जगह बैठने के लायक नहीं थे फिर भी बैठे। को खाली पूरा करें, बैठने के लायक नहीं रहे फिर भी बैठे। हमें जो मौलाई होने के लायक नहीं रहे फिर भी हुए। बड़ा आसान समझते लोग, समझते मौलाई जो है वो गिटअप का नाम है, मौलाई मेकअप का नाम है, मौलाई ड्रेस कोड का नाम है। दरअसल दो लफ्ज़ हैं, एक है मुहिब्बे अहले बैत। कोई भी चला है वो सब मुहिब है। मजलिस में आके बैठ गया, अहले बैत की मोहब्बत में मुहिब है। मुहिब आया, जितने आए सब मुहिब आए। मौलाई किसे कहते हैं? जो विलायत अली लेके आया। फिर कहीं सर्व किया कीजिए, मौलाई है, बड़े मौलाई है, बड़े मौलाई है। तो मौलाई का मतलब क्या है? जो विलायत अली लेके चल रहा वो है मौलाई। विलायत है ना, कितनी अहम है। यही बताने के लिए आज मैंने आयत तिलावत की। आप लोगों ने सोचा होगा ये तो नफ्स की आयत, बड़ा खुश मौजू,
पढ़ते ही नफ्स पे आ गए। लेकिन आप देखिए कि खुश्क में दर कैसे होता है और दरी में खुश्की कैसे आती है। ये भी जरा मेरे साथ चलिएगा। बात है नफ्स की नफर भाई, बड़ी तवज्जो है। आप हजरात माशाल्लाह आवाज़ें हर जगह बुलंद रहती है, लिहाजा बड़ी तवज्जो है। मैंने आपकी खिदमत में अब ये दो आयतें मैंने पढ़ी, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा सूरत शम्स, क़द अफ़लहा मन तज़क्का सूरत आला, जिसको आसान ज़बान में सब्बे इस्मा कहते हैं। हम लोग भी कुछ नाम मादरी रखे हुए हैं ना, उसी तरह सूरत आला ये हो गया। अब दोनों में जिक्र क्या है? कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया। अच्छा, ये नफ्स का तज़किया इतना बड़ा टॉपिक है जिसका हमारे यहाँ जिक्र ही नहीं। बहुत हुआ तो बस जब मौत का तज़किरा होगा तो हर नफ्स को मौत का जायका चलना। किसी ने कहा नफ्स माने जीरो, जितनों के पास रूह है वो मौत का, हालांकि ये नहीं, मौत का जायका नफ्स चखता है। नफ्स के अलावा भी इंसान के पास दो चीजें हैं, ऊपर नीचे। बीच में नफ्स है, पर रूह है, नीचे जिस्म है। थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है मेरे नौजवानों ने कि खुदा की कसम कुछ लेके उठोगे जो मैं चाहता हूं, अगर थोड़ा सा मेरे साथ मेहनत कर ली। यानी ऊपर है रूह, नीचे है जिस्म। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, सूरह यासीन, हार्ट ऑफ द हाली कुरान। सूरे का नाम ही अल्लाह ने रखा क़ल्बे कुरान, और क़ल्बे कुरान में कहा दरमियान सूरह यासीन कि हमने जितने भी इंसान बनाए, अफराद बनाए, मखलूक बनाई, उन्हें तीन चीजों से आरास्ता किया। खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़, उसे मैंने एक वो चीज दी जिस चीज के जरिए वो जमीन पे चलता है, फिरता है, ड्यूटी करता है, जॉब करता है, कॉलेज जाता है, ऑफिस जाता है, मजलिस पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, यानी जिससे सारे काम करता है। अल्लाह ने कहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़, मैंने पहली चीज जो दी है तुम्हें वो तुम्हारा जिस्म है, जिसके जरिए तुम जमीन पे चलते हो। ये बॉडी, ये जिस्म, अल्लाह ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। कुरान है मिम्मा तुंबितुल अर्ज़, जमीन पे चलना फिरना, इसके जरिए तुम चलते हो। इसका नाम है बॉडी, इसका नाम है शरीर, इसका नाम है जिस्म। और दूसरी मंजिल क्या बयान की? वह मिन अनफुसिहिम, और दूसरी चीज तुम्हारे नफूस है। ये नफूस क्या है? नफ्स की जमा है। यानी अल्लाह ने जिस्म के बाद, देखिए थोड़ा सा ये सब गुफ्तगू जो होती है ना, ये दरसे खारिज में होती है, उलमा बैठे हुए, मगर वह दरसे खारिज में कुन तक नहीं गया, मगर कुन के दरसे खारिज की किताबें हिंदुस्तान तक आई। बड़ी तवज्जो रहे, यानी मुश्किलें आसान करने के लिए जैसे मौला नजफ से चले आते हैं, वैसे ही किताबें कुम और मशाल से चली आती हैं। तो जो किताबें मेरे आपकी खिदमत में बहुत जरूरी है, ये स्टडीज और ये सारे बच्चे आज कम अज कम बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, लेकिन ज्ञान से, नौजवानों से मैं चाहता हूं कि ये पूरी तरह से अपने शहर में महफूज कर ले, ताकि नेक्स्ट स्टडीज में उन्हें मदद मिल सके और इस तरफ मुतवज्जे हो सके। पहली चीज क्या है? मिम्मा तुंबितुल अर्ज़, वो बॉडी जिसके थ्रू जमीन पे चलते हो। व मिन अनफुसिहिम, दूसरी चीज वो है जो तुम्हारे नफूस है, नफ्स। व मिम्मा ला यालमून, तीसरी चीज वो जिसे तुम नहीं जानते। जब अइम्मा से पूछा गया, या अल्लाह जो कह रहा है जिसे तुम नहीं जानते, वो तीसरी चीज क्या है? तो मासूम ने आयत की तिलावत करके बताया
यसअलूनका अनिर रूह, ये तुमसे सवाल करते हैं कि रूह क्या है। बोले रूह मिन अम्र रब्बी, तो इन्हें बता दो कि रूह मेरे परवरदिगार का अम्र है, बस इसे मानो, बहस न करो। अगर जब अम्र पर बहस का इख्तियार नहीं लिया गया तो उन्हें अम्र पे बहस क्यों करते हैं। बड़ी तवज्जो रहे, मंजिल तवज्जो, बड़ी मंजिल है। आज थोड़ा सा कुछ किताब पढ़ के आया हूं, क्योंकि बिरादर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद अस्करी खान साहब ने आज की मजलिस पढ़ने का हक उनका था, मगर उन्होंने तफवीज कर दिया मुझे, इसलिए कि जहां कहीं वो थक जाते हैं मुझे आगे बढ़ाते हैं, और जाहिर है कि थका हुआ जब किसी को आगे बढ़ाए तो वही जानशीन कहलाता। मुस्तफा को भी तो अल्लाह ने कहा ना कि अलम नशरह लका सदरक व वज़अना, क्या उस बोझ को नहीं हटाया मैंने मुस्तफा जो तुम्हारी कमर झुकाए हुए था। बड़ी मंजिल है, मुस्तफा की कमर झुकाए हुए था। अल्लाह ने कहा वो बोझ मैंने हटाया, किसे? विज़्र कल्लज़ी, विज़्र कहते हैं बोझ को, और वज़ीर कहते हैं बोझ हटाने वाले को। इससे ये पता चला पूरी दुनिया ने देखा उस वज़ीर का नाम अली है। अरे अली बगैर जब मुस्तफा की कमर का बोझ नहीं हटता। आप देखें मंजिल, ज्यादा मैं चल रहा हूं, बड़ी तेजी से आ रहा हूं मैं। देखिए अभी तक मैंने दो दुगाने वाली बात की आयत में, दो दुगाने, कद अफ़लहा मन ज़क्काहा, कद अफ़लहा मन तज़क्का। अब आइए जुमे पे, जिसे हर जुमा पढ़ते हैं, जुमे के सूरे की दूसरी आयत मुख्तार भाई इरशाद हो रहा है कि हमने आपको मेरे हबीब हुवा नबी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अब ये हर जुमे को व युज़क्कीहिम व युज़क्कीहिम व युज़क्कीहिम की तकरार क्यों है? हर जुमे को आयत पढ़ी जा रही ताकि हर जुमे ये याद रहे कि तुम्हें अपना तज़किया नफ्स करना है। ड्यूटी 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 से फरार होकर अपनी मनमानी में आया मोहम्मद के मकबूल नहीं बनो। जो जहन में आया, दिल में आया, उसे हमने उनके लिए चाहा, ये नहीं जो उन्होंने चाहा। अगर वो हमने चाहा तो हम मौलाई हैं। किसी मौलाई की चाह पे दीन नहीं है, दीन की चाह पे मौला है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, दीन की चाह पे मौला है। अरे जुमला ले लो ना, गदीर ने मौला चाहा था, तो ये दीन की अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये रजा बता रही है, ये बड़ी तवज्जो है। अब आगे आगे तो अब जुमे में पैगंबर की जो ड्यूटीज है ना, बेशक मबूस किए जाने की, उन ड्यूटीज में एक ड्यूटी यतलू अलैहिम आयातिही, आयात की तिलावत, व युज़क्कीहिम, दूसरी चीज तज़किया नफ्स, व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, और किताबों हिकमत की तालीम। पहला काम क्या? आयत की तिलावत। दूसरा काम क्या? तज़किया नफ्स। जब तज़किया नफ्स हो जाए तब इल्म और हिकमत। मेरे सरकार कहाँ है? पहले कुरान की तिलावत, फिर तज़किया नफ्स। जब तज़किया नफ्स हो जाए तब इल्म और हिकमत, यानी कुरान की तिलावत जारी रहेगी, ये सब सुनेंगे। नोके नैजा पर गला कटने के बाद वो यजीदी भी कुरान सुनेंगे जो नैजे पे सर उठा के लेके चले हैं। लेकिन कुरान का सुनना और है, सुनकर तज़किया नफ्स मिल जाना और है। ये कुरान तज़किया नफ्स के लिए पैगंबर की ड्यूटी तज़किया नफ्स। अब इसका तर्जुमा तज़किया का जो लोग करते हैं वो ये करते हैं
कि पैगंबर का काम है नफ्सों को पाक करना। ये तर्जुमा आसान सा उलमाए किराम करके गुजरते, क्योंकि मैं भी उलमा से एक साथ बहस करता हूँ। अब जाहिर है कि इसकी वसात में उलमा के करीब वो जाए जो जानवे अदब तय करना जानता हो। बहुत बड़ी मंजिल है, क्योंकि यहाँ की मजलिस में दूर से आए हुए जाते हुए रास्ते का वक्त देखना, अभी खाना भी खाना है, घर भी पहुंचना है, ये तमाम चीजों के बावजूद सारी दुनिया की जरूरियात को रोक कर सिर्फ आले मोहम्मद की तरफ मुतवज्जे होकर अगर हम ये मजलिस लेके नहीं गए तो तबर्रुक तो जिस्मों की बीमारी दूर करेगा, लेकिन जिक्र आले मोहम्मद रूहों की बीमारी दूर करेगा। थोड़ा सा मैंने 3 चीजें बयान की। वजह की है क्या है तज़किया? कहा नफ्सों को पाक करना। अच्छा, यही तज़किया कहीं लफ्ज़ तहारत आया, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुरान ने हुक्म दिया अन बैती लित्ताइफीन, मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए पाक करो। अब इसका भी तर्जुमा पाक लिखा जा रहा है, तज़किया का तर्जुमा भी पाक लिखा जा रहा है। ये कुरान है, लुगत और डिक्शनरी नहीं है। जो ज़हन इंसानी तरतीब दे वो लुगत है, और जो ज़हन को तरतीब दे वो कुरान है। वही तवज्जो है। लिहाजा अब ये कुरान है, कुरान से समझिएगा। अब हमने सोचा कि जब अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया है कि मेरे घर को पाक करो, तो इब्राहिम ज़मज़म से बाल्टी बाल्टी पानी निकालेंगे और खूब छान जैसे पानी साहब मस्जिद खोलते हैं, वैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाल्टी बाल्टी, लेकिन उन्होंने कोई बाल्टी इस्तेमाल न की, बल्कि तारीख कहती है कि उन्होंने इधर उधर जो पत्थर पड़े थे छोटे बड़े सबको चुन के इकट्ठा कर दिया, और उसके बाद उसी पत्थर पर खड़े होकर काबे की दीवार ऊंची करने लगे। तो कुरान ने समझाया कि इब्राहिम घर को पाक करो। मुफ्ती तर्जुमा दिख रहा है पाक करो, और इब्राहिम अमल से तर्जुमा कर रहे हैं बिखरे हुए पत्थरों को इकट्ठा। बड़ी तवज्जो है, ये पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ मुस्तफा ने वयुज़क्कीहिम की ड्यूटी ली। लोगों ने समझा कि अब नबी सबको पकड़ पकड़ के नहलाएंगे और नफ्सों को पाक करेंगे। मुस्तफा जाने रहमत में गदीर के मैदान में खड़े होंगे, कहा अलस्तो औला देखो मिनल फुसको, क्या मैं तुम्हारे नफ्स पे तुमसे ज्यादा अख्तियार रखता हूँ? सबने कहा आलू भला का मन कुंदो मौला हो बहादा अली मौला। तुम नफ्स के पाक करने का मतलब नहलाना समझते हो, मुस्तफा नफ्स की पाकीज़गी का मतलब दिलों पर अली की विलायत का जैसे बदन नजिस हो जाए तो पानी पाक करेगा, वैसे ही नजासत नफ्स के लिए विलायत अली की जरूरत है। कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब देखिए, मैंने 3 चीजें आपकी खिदमत में बड़ा अच्छा सुन रहे हैं खुदा की कसम, वरना अगर मैं कहीं और इतना गाढ़ा लेके चला होता, लेकिन मैं चूंकि साकिब अल्लाह को जानता हूँ, वो शख्सियत जो मेरे हमसे मेरे बराबर के हैं, जाहिर है उसे मेरे तकल्लुफी का रिश्ता है, लेकिन उन सब के सारे नौजवान बच्चे जो माशाअल्लाह बचपन से अचानक जवान नजर आए, अल्लाह सलामत रखे इन जवानियों को, इसलिए कि तुम मुस्तकबिल हो कौम का, और बता दिया कि उन शियों का मुस्तकबिल नहीं हो जो घरों में बैठकर सुलह हसन की बात करते हैं, तुम उन शियों का मुस्तकबिल हो जो मक्तल में उतर कर जिहाद हुसैन की बात करते हैं। जुमले में सब कुछ कह दिया मैंने, तस्रीह कर लीजिएगा, मगर अब
चीजें मैंने बयान की। मिम्मा तुम बिल्कुल अर्ज, एक चीज है जिसके जरिए तुम जमीन पे चलते हो, वह मिन अनफुसिही, दूसरी चीज तुम्हारा नफ्स, वह मिम्मा ला यालमून, और तीसरी चीज तुम्हारी रूह। तो रूह, नफ्स, जिस्म। रूह पर, जिस्म नीचे। नीचे क्यों? कहा मिट्टी से लिया गया है, मिट्टी से लिया गया। तो नीचे रूह आलम अम्र से आई, तो ऊपर, तो रूह ऊपर, जिस्म नीचे। तो फिर दो चीजें तो समझ में आ गई कि रूह ऊपर से है, जिस्म नीचे से है, तो फिर नफ्स कैसे है? इसका तारुफ भी होगा ना। और यही बात है जो बड़ी गलत है। थोड़ा सा इस पर जो हजरात बिल्कुल से अगर चुप रहे और मुंह बिगड़ा तो मैं समझूंगा ये हुब्बे अहले बैत का प्यारा नहीं, बुग़्ज़े हैदरी का मारा। जाती तौर पर भी लोग एक दूसरे के बुग़्ज़ का शिकार होकर अपनी इबादतें खराब कर लेते हैं। इसीलिए मस्जिद में बुलाया और कहा जो भी आजू बाजू है सबसे हाथ मिलाओ, सबसे मिलो। अब सबसे मिले बगैर नमाज मुंह पे मार दी जाती है और अकेले रह के विलायतें अली जाते हो। ये आवाजें सलामत रहे, लिहाजा बड़ी तेजी से मैं आ गया। तो ये तीन चीजें हैं ना, जिस्म, नफ्स, रूह। माशाल्लाह जमीन से स्लैब तक जितने भी फुट है, मैं से 12 है, 12 फीट उधर से रूह चली, 6 फीट पे रुक गई। इधर से जिस्म चला, 6 फीट पे रुक गया। अब दोनों को रोकने के लिए कोई चीज जरूरी थी। अगर दरमियान में कुछ न रखा जाए तो ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाला नीचे। यही तो होगा, क्योंकि मकूला है कुल्ल शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपने अस्ल की तरफ पलट जाती है और खिंचाव होता है, ग्रेविटी होती है ना। मैटर में ग्रेविटी होती है, मादे में कशिश होती है। देखिए दोनों पढ़ रहा हूं ताकि कोई ये ना कहे कि मैं तो जॉनी पढ़ा हूं। मेरा जॉनी बड़ा मशहूर है, पढ़ा तो मैंने अकेले था लेकिन पहुंचाया हजारों ने है। मगर ये जरूर है कि मैंने आईना जरूर दिखा दिया कि लब पर कुरान की आयतें सजाकर बच्चों को रोटियां खिलाने वाली माँ और है, और जानी जानी सुनाकर मैगी खिलाने वाली माँ और। अरे आयतें पढ़ के मैं नहीं कह रहा हूँ। अल्लामा इक़बाल का फारसी का शेर सुनाऊं, उलमा है। अल्लामा इक़बाल में मादखाहराने इस्लाम से खिताब, आप इसको टाइप कीजिएगा गूगल पे भी, अल्लामा इक़बाल की ये नज़्म मिल जाएगी। उसमें शहजादी कौनैन की मदह करते हुए इक़बाल लिखते हैं कि अदब परवरदाए सब्र रज़ा, अदब परवरदाए सब्र रज़ा, वो सब्र रज़ा की अदब परवरदा बीबी आसिया करता, वो लब कुरान सिरा, उसके हाथ से चक्की चलती जाती थी और लब पर कुरान की आयतें जारी होती। तो अब समझ में आया, ये जो फातिमा की चक्कियों से निकली हुई जौ की रोटियां हैं, ये खाली रोटियां नहीं है, ये खिलाफत के साये में पकी हुई रोटियां हैं। ये रोटियां कोई खा लेता है तो आदि बन के खैबर का तर उठाता है। तुम्हारे यहाँ अगर कुरान
आयतों पर, रोटियों पर आयतें दम नहीं होंगी, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं रोके नज़ा पे हुसैन का कुरान पढ़ना मौजूदा है। ये मौजूदा नहीं है, कहीं नहीं लिखा गया कि हुसैन का कुरान पढ़ना मौजूदा नहीं है। मौजूदा वो है जिसकी दलील न मिले। यहाँ तो फातिमा दलील दे रही है, ये उस तरबियत का असर है जहाँ खून के कतरे कतरे में आयतें बसी हैं। बड़ी तवज्जो है। मैं है जिस जमाने की माँ चाहो बनाओ, मैगी खिलाकर सोनी और डोरेमोन वाले बच्चे पैदा करो, है ना? लेकिन सब पे है, कुछ लोगों को बहुत खलता। अच्छा, मैं भी खलवाता रहता हूँ, तो क्या जरूरी है? क्योंकि हक कबूल किया, हक के लिए जाती दुश्मनियां दोस्तियां किनारे रख दिया। नमाज हक है, अपना बुक्स बाहर चप्पल के साथ उतारो। बाहर चप्पल तो उतार दी, दिल से बुक्स नहीं उतारा। बाहर चप्पल तो उतार दी, असर नहीं निकाला। ये सब भरा हुआ है अंदर, और लेके बैठे हैं मजलिस में। कोई नहीं पसंद आ रहा है तो उसे ही देखे जा रहे। इस्लाम ने कहा अगर वो पसंद नहीं आ रहा है तो मिंबर देख, और अगर मौलवी पसंद नहीं आ रहा है तो कौन मत देख, क्या देख। सारी चीजें तो बता दी है ना, फिर भी हलाक हो रहे हो तो होते रहो, फिर भी होते रहो, तुम्हारा मुकद्दर। लेकिन अजीजों, मैं ये तीनों चीजें बता रहा हूं, एक ऊपर से रूह का आना, नीचे से जिस्म का जाना। अच्छा, रूह एक झटके में आ जाती, लेकिन नीचे से जब जिस्म चला तो ये 15 साल का मरहला तय करके चला। हाय हाय, अब इधर नहीं जाऊंगा, वक्त ज्यादा हो जाएगा, वक्त ज्यादा हो जाएगा। और अगर ये कहूं कि फिर कभी, तो ये भी सदा है कि किसी तरह तो आ गए, फिर की तमन्ना ज्यादा फिर वाली बात नहीं। आज यही पे बात तमाम करूं, खिदमत आली में बड़ी तवज्जो रहे। देखिए, मेरा मजमा खुदा की कसम, ये जिक्र अहले बैत के अतहार का सदका है। इसलिए भी मजलिसों में आया करो ना कि अगर फातिमा हसनैन को आयतें पढ़ के सुनाती हैं तो ये तबर्रुक तुम्हें जिक्र अहले बैत सुन के सुनाता। कोशिश किया करो, दोस्तों के साथ खाने का प्रोग्राम संडे का संडे अगर बना रहे हो तो उन्हीं दोस्तों को इमामबाड़े में लेके चले आओ, वही पैसे पेटियों में डाल दो और अपने नफ्स को अहले बैत के हवाले कर दो। वाह वाह वाह, मैं आ गया। अच्छा पैगाम। ऊपर से चली रूह, नीचे से चला जिस्म। अब दोनों अपनी अपनी जगह छोड़ के चले। कहीं पे कहा जाता है इंसान फरिश्तों से अफजल, और कहीं कहा जाता है जानवरों से बदतर। यानी यही इंसान फरिश्तों से अफजल और जानवर से बदतर। अब ये बात कैसे समझ में आती? मैंने इस पर बड़ा गौर किया, सोचा, तो सोचते सोचते मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि पहले मुझे जिस्म और रूह समझना होगा। जब मैं समझने चला तो मैंने देखा दोनों चीजें ऊपर से एक नीचे खींच के लाई गई है और एक नीचे से ऊपर खींच के, क्योंकि एक पत्थर जो जमीन का है जब इसे आप ऊपर मारते हैं तो खींच के मारते हैं। अब आप कहते हैं खींच के मारूंगा, ये क्यों कहे? मतलब ये है कि मरकज छोड़ते हुए वो जब ऊपर चलती है तो ग्रेविटी है, इसलिए जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन जब वही पत्थर पलटता है तो स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि मरकज अपनी तरफ खींच रहा है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, यही हाल जिंदगी का है। जब चलती है तो खिसकती है, लेकिन जब मौत आती है तो एकदम से ये मौत का आना बता रहा है। कोई मिट्टी है जो खींच रही है। सरकार मेरे में क्या करूं? वक्त नहीं है कि तशरीह में जाऊं, थोड़े से इशारे काफी। अच्छा, अब मैं दोनों, अच्छा इसकी एक मिसाल मैंने कहीं दी,
एक स्प्रिंग जब आप ऊपर से खींचते हैं तो जहां तक लाके खींच के रुके हैं वहां जब तक पकड़े रहेंगे तब तक रुकी रहेंगे और छोड़ेंगे तो ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली नीचे। अच्छा मैं दोनों स्प्रिंग लेके खड़ा हूँ, ऊपर वाली भी नीचे वाली, कभी नीचे खींच रहा है यूं हो रहा हूँ, कभी ऊपर खींच रहा हूँ। किसी ने देख के शौकत भाई जैसे अकलमंद आदमी आए, मैंने बोला ना बहुत परेशान हो रहे हैं, क्यों? कब तक पकड़ के रहेंगे? मैंने कहा करूँ क्या? करेंगे ये लीजिए, ये नट बोल्ट है, दोनों को मिलाइए, ऐसे कस दीजिए। मैंने कहा फायदा क्या होगा? करेंगे फायदा ये होगा कि अब ये नट बोल्ट दोनों स्प्रिंग को रोकने में मददगार रहेगा, और जब तक ये नट बोल्ट रहेगा ये रूह यहाँ रहेगी, ये जिस्म यहाँ रहेगा, और जिस दिन नट बोल्ट हट गया उस दिन रूह वहां चली जाएगी, जिस्म यहाँ चल जाएगा। अब समझ में आया? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इसका मतलब ये दरमियान से मलकुल मौत नफ्स को हटा देंगे, रूह वहां चली जाएगी, जिस्म यहाँ चला जाएगा। नहीं मेरे साथ ये शायद ज्यादा मैं समझा नहीं सकता, मेरे इल्म से आगे की चीज है, लिहाजा मैं इसको यही ठहराकर ये जुमला कहना चाहता हूँ। दरमियान में जो नट बोल्ट है ना, वो इतनी अहमियत का हामिल है कि ये नट बोल्ट मैं देखता हूँ कभी ऊपर खींच जाता है, कभी नीचे चला जाता है, 2 फुट नीचे, कभी 3 फीट ऊपर। मैंने कहा शौकत भाई ये क्या हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर का असर है। जरा ये बम्बई है ना, ये समुद्री खारा पानी और यहाँ की ह्यूमिडिटी, ये कभी बोल्ट को ऊपर वाली खींच लेती है, कभी नीचे वाली खींच लेती है। पर यही हाल इंसान का है, जब ऊपर वाला बोल्ट स्प्रिंग खींचती है बोल्ट को तो ये नट बोल्ट ऊपर चला जाता है, और जब ऊपर चला जाता है तो फरिश्तों से अफजल हो जाता है, और जब नीचे आता है तो जानवरों से बदतर हो जाता है अपनी जगह पर। इसीलिए नफ्स के हवाले से कहा गया इत्मीनान नफ्स हासिल करो। अच्छा एक और बात, आखिरी बात, ये दरमियान में जो नफ्स है इसको हटा दिया जाए तो न रूह रहेगी न जिस्म रहेगा। अच्छा रूह का काम क्या है? ईमान लाना, अल्लाह एक बजे तक 5 ये जितने अकीदे हैं ये रूह का काम है, और जितने अमल हैं ये जिस्म का काम है। तो जिस्म अमल करता है, रूह अकीदा रखती है। नफ्स क्या करता है? कहा नफ्स अखलाक का मुजाहिरा करता है। और मैंने अपने उस तहरीर का पूरा मवाद, पूरी मेहनत एक लफ्ज में, दरमियान में ये नफ्स क्या कर रहा है। तो जब मैंने शरीयत पढ़ी ना, जो मैंने शुरू में कहा था सब पढ़ाया नहीं जा रहा है, सब तरफ तवज्जो नहीं, अकीदा बताया जा रहा है, अमल बताया जा रहा है, लेकिन जब हमें दीन पढ़ाया जाता है तो दीन को 3 हिस्सों पे मुश्तमिल बताया जाता है। अकायद, अखलाक, अहकाम। कई चीजें हैं, अकायद यानी अकीदा, अखलाक और फिर अहकाम यानी अमल। तो बात तो समझ में आ गई कि अकीदा काम है रूह का, अमल काम है जिस्म का। तो अब अखलाक किसके लिए है? कहा नफ्स के लिए। बड़ी तवज्जो रहे, जिस्म जो करेगा उसे इबादत कहा जाएगा, और नफ्स जो करेगा उसे मामलात कहा जाएगा। मेरे सरकार में आ गया मजलिस तक। जो जिस्म करेगा उसे अहकाम और अमाल कहा जाएगा, और जो नफ्स करेगा उसे मामलात कहा जाएगा। इसीलिए अली ने कहा किसी का ईमान जांचना है तो इबादत न देखना, मामलात देखना। तबर्रुक खिला के वो इबादत तो करेगा, लेकिन जरा देखना कि भटियारे का दिया कि नहीं दिया। बड़ी तवज्जो रहे, यानी अब इस्लाम तबर्रुक खिलाने पे नहीं परखा जाएगा, भटियारे की अदायगी पे परखा जाएगा।
काम है अजीजों। और जब हम जैसे मौलवी भी सोचते कितनी मेहनत करें तो नहीं करते, मगर जब आप इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं तो मेहनत करवा ही लेते, बल्कि पसीना छूट जाता है। सलामत रहे आप, आपकी समातें जिंदाबाद, सलामत रहे। मौला आने दे। मैं यहाँ तक इसलिए लाया हूँ कि इबादत से बड़ी चीज है मामलात। नफ्स का ताल्लुक है मामलात से, बड़ी तवज्जो रहे। नफ्स का ताल्लुक मामलात से, जिस्म का ताल्लुक इबादत से। इसीलिए तज़किया-ए नफ्स जरूरी है कि तज़किया-ए नफ्स रहेगा तो कातिल को भी शरबत पिला लो। अरे जैसे आदियान कहता है इत्तेहाद करो, इत्तेहाद करो। कुछ लोग कहते हैं कैसे इत्तेहाद करें, कैसे करें। मौलाई हो के भी पूछ रहे हो कैसे करें। हमारा तुम्हारा मौला जैसे कातिल को शरबत पिला देता है वैसे तो इत्तेहाद कर लो। वाह 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 वाह, सलाम करिए मेरे मोहम्मद। वाह वाह वाह। के बच्चे को ढाल बनाने वाला अमर बिन अब्दुल का पसीना छूट गया मेरे सामने, लेकिन वही अली अपने कातिल को शरबत पिलाते कह रहा कि देखो इसका ताल्लुक इबादत से नहीं है, मामलात से है। और मामलात जब ही दुरुस्त होंगे जब तुम्हारा नफ्स पाक होगा। और नफ्स नहीं पाक होगा तो जुमला कहूँ, एक जुमला कहूँ, अगर नफ्स निकाल लिया जाए, नफ्स निकाल लिया जाए तो न रूह रहेगी न जिस्म रहेगा। वैसे विलायत अली निकाल लिया जाए तो न ईमान रहेगा न इस्लाम रहेगा। इसीलिए आज एक मरहुमा के रिसाले सवाल की मजलिस है, और मरहुमा भी वो जो रिश्तों के एतबार, रिश्ते न रूह के होते हैं न नफ्स के होते हैं। नफ्स का रिश्ता नहीं होता, नफ्स नफ्स ही रहता है। इसलिए रसूलुल्लाह जब अली को मैदान मुबाहिला में ले गए तो नफ्स के ही ले गए, क्योंकि मामला नफ्स का है, नफ्स का कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन दावत दुलशीला में का मेरा भाई, मैदान मुआखात में का मेरा भाई, तो जहाँ जिस्म पहचानवाना हुआ वहाँ भाई कहा, और जहाँ नफ्स पहचानवाना हुआ का मन कुन तो मौला हो, कहा था अली मौला। है जो देखने के काबिल। लिहाजा रिश्ते, रिश्तों का ताल्लुक जिस्म से। जब हम इस दुनिया में आए ननियाल बना, ददियाल बना। ये ननियाल और ददियाल का ये जोड़ा आया कहां से? एक औरत का अपने बाप के घर से माइग्रेट करके अपने शौहर के घर जाना, खाली ये यहाँ से वहां निकली, यहाँ ननियाल बना, यहाँ ननियाल बना। अब समझ में आया, जिसके कदमों की जुम्बिश रिश्तों के तहफ्फुज़ का नाम हो, उसे औरत कहते हैं। इसीलिए पैगंबर ने अपनी नबूवत से पहले खदीजा को पहचानवा दिया। अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया लेकिन पहचानवा दिया। रिश्तों की अहमियत को ना बोलो, जो आजकल हमारे पास वक्त ही नहीं। जिंदगी इतनी लग्जरी है कि अगर हफ्ते में 4 दिन काम छोड़ देंगे तो घर की एसी का बिल इतना आएगा कि या तो पावर कट हो जाएगा और या हरामखोरी करना पड़ेगा। तो जिंदगी इतना लग्जरी न बनाओ कि रिश्ते खो दो। जिंदगी को इतना आसान बनाओ कि रिश्ते एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे रहे, बड़ी तवज्जो रहे। और जिन्हें पैसा अल्लाह ने दिया है उनकी पैसा देकर ये ड्यूटी लगाई है कि ये सेल्फ खुद के लिए नहीं दिया है, इनके लिए भी है, इनके लिए भी है, इनके लिए भी है। यानी दे के बता दिया तो तुम्हें
इसलिए दिया ताकि अता का दामन न रुके, और गरीब को गुर्बत इसलिए दी कि खैरत का दामन न छूटे। गरीबों को अपने खैरत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, अमीरों को अपनी अता नहीं छोड़नी। मालदार अपनी सखावत छोड़ेगा तो माशरा तबाह होगा, रिश्ते पामाल होंगे। इसीलिए रिश्तों के हुकूक इस्लाम ने अपनी शरीयत में बयान की। रिश्ते के हुकूक, इसकी अदायगी, हुकूक इबादत है, अदायगी मामला है। जिनके मामलात अपनी बहनों से सही नहीं है, बहनों से सही ना होने का मतलब क्या है कि अब्बा की पूरी विरासत को लेके बेटवा बन के बैठे, बिटिया होकर के जो घर में पली उसका हक नहीं लिया। तो तुमने इबादत में तो शहजोरी दिखाई लेकिन मामले में कमजोर पड़ गए, मामले में कमजोर पड़ गए। और इस्लाम कह रहा है कि तुम्हारा ईमान इबादत से नहीं परखा जाएगा, मामलात से परखा जाएगा। अब समझ में आया, इब्लीस इबादत तो करना जानता था, मामलात करना नहीं जानता था। सलावत पढ़िए मेरे मोहम्मद वाले। माशाअल्लाह मुझसे भी दूर दूर से लोग आए हैं, चेहरा बता रहा। तो इसलिए माशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को घड़ी की सुइयों के साथ समेटना मजबूरी है। ज्यादा इस हकीकत नफ्स को पहले से, क्योंकि मौला फरमाते हैं मन अरफा नफ्सु फकत अरफा रब्बो। तुम्हारे रब का इरफान न तुम्हारी रूह से होगा न तुम्हारे जिस्म से होगा। रब जब ही पहचाना जाएगा जब नफ्स पहचाना जाएगा। और जिसके नफ्स पर अली की हुकूमत होगा वो क्यों ना अपने रब को पहचानेगा। लिहाजा जो मौलाई होगा वो रब को पहचानता होगा, क्योंकि उसके नफ्स पर अली की हुकूमत है। आप समझ में आया? जो नफ्स पर हुकूमत करे उसे अली कहते हैं। अलीयन वलीउल्लाह, अली की विलायत नफ्सों पे है, फकीर की विलायत जिस्मों पे है। बस एक लफ्ज़ में मैंने सब पढ़ा, अगर पैगाम पहुंच जाए, हालांकि रॉन्ग थिंग में ज्यादा पहुंचता है, लेकिन मैं मिंबर की कसम खा के कह रहा हूं कि इस पे गौर कर लेना। जिस्मों पर हुकूमत हाकिम करता है, नफ्सों पे हुकूमत मौला करता है। बेशक बेशक। बड़ी तवज्जो रहे। और एक वजह और बताऊं, हमारी रूह से पहले भी हमारा नफ्स था, हमारे जिस्म से पहले भी हमारा नफ्स था। जिस्म नहीं रहेगा तब भी नफ्स रहेगा। और यहीं से ये बात भी समझ में आ जाती है, नमाज रहे न रहे अली रहेगा, रोजा रहे न रहे अली रहेगा। बड़ी तवज्जो रहे। लेकिन अब अगर वही रोजा उस अली को नफ्स पर हाकिम बना के रख लिया जाए, वही नमाज नफ्स पर अली को हाकिम बना के पढ़ ली जाए, तो ये कबूलियत नमाज की सबसे बड़ी सनद। ज्यादा अली मौला है नफ्सों पर, नफ्सों। और हकीकत नफ्स को और भी थोड़ा स्टडी करें मेरे नौजवान, कोशिश करें। इसलिए कि जीडीपी वगैरह से, जीपीटी और एआई ये सब चीजों पे भरोसा न कीजिए, क्योंकि मैं कुछ चीजें पूछने गया तो ये वही कुछ बता रहा था जितना अमेरिका और इस्राइल उसे बताए हुए। बड़ी तवज्जो रहे भाई, यजीदियत के कारखाने से हुसैनियत नहीं ली जाती। बड़ी तवज्जो रहे, मैं इस बारे में गुफ्तगू करके जा रहा हूँ। बड़ी तवज्जो रहे, हर जमाने में यजीद होगा। अब कुछ लोग कहते हैं ये जमाने का हुसैन कैसे? जमाने का हुसैन नहीं होगा, मगर जिसे हुसैन अपना कहेगा वो होगा। भाई हबीब को क्या कह के बुलाया था? फकीर।
حسین نے کربلا میں حبیب کو فقیہ کہہ کے بلا کے بتا دیا ہم رہے نہ رہے اسلام کو فقیہ کی ہر دور میں ضرورت ہوگی. اس کانسیپٹ کو جاری کامیاب ہے. آج مجلس اس مرحومہ کے لیے ہے کہ جس کے لیے میں کچھ ربط مسائل کی اگر کڑیاں ڈھونڈوں تو کس طرح ڈھونڈوں. اس لیے کہ وہ جانے والی مرحومہ جس کے جوان بچے بھی مجلس میں موجود ہیں, وہ جانے والی مرحومہ جس کی اکلوتی بیٹی بھی مجلس میں موجود ہے, وہ جانے والی مرحومہ جس کا شوہر بھی مجلس میں موجود ہے, وہ جانے والی مرحومہ جس کا ولی بھی ایک بزرگ کی صورت میں, شفا چچا کی صورت میں آج سرپرست خانوادہ ہے. اللہ انہیں حیات دے, انہیں زندگی دے, صحت و تندرستی کے ساتھ. محترم علی شبر خان صاحب کو, اور اس وقت مجھے جیسا کہ علم ہوا کہ ان کی 4 بیٹی جس نے پوری زندگی اس طرح مشقتیں اٹھائیں کہ ابھی جوانی کی دہلیز سے چند قدم آگے نہ بڑھے تھے کہ شوہر برین ہیمریج کا شکار ہو گیا اور پوری زندگی امتحان دیتی رہی. امتحان دیتے دیتے وہ بچی آج پھر تقریباً 15 دنوں سے ہاسپٹلائز ہے. پروردگار عالم تجھے سکینہ اور صبرہ کا واسطہ اس بچی کو شفائے کاملہ عطا فرما. جتنے مریض ہیں اس بچی کے ساتھ ساتھ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ واجر عطا فرما. احباب کرم, کیونکہ مریض جو ہے نا میں نہیں, مریض کی دعاؤں تک کی قبولیت کی سند حدیث میں موجود ہے. اگر کوئی مریض ہونا تو اس سے دعا کرنے کو کہا کرو. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ شریعت نے کہا کہ جب کوئی مریض ہو تو اس سے دعا کرنے کو کہا کرو. میں کہوں گا شریعت سے ہاتھ جوڑ کر کہ شریعت محمدیہ تو نے تو ہم سے کہہ دیا کہ مریضوں سے دعا کروایا کر. ذرا اس صبرا کی دعاؤں کی طرف دے جو مدینے میں رہ کر اپنے بابا کے لیے دعائیں کر رہی ہے, اپنے کلیل جوان بھائی کے لیے. ارباب اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہیں اور یہی مجالس کے آنسو جسے ایک دکھیاری ماں اپنا رومال لے کے آئی ہے, وہ ماں جس نے کربلا میں اپنا حسین دے دیا. کون سا حسین جسے چکیاں پیس کے پالا, چکیاں پیس کے زہرا کے پالا تھا, کیونکہ مقتل سے یہی صدا زہرا کی آئی تھی, میں نے حسین کو چکیاں پیس کے پالا. ارباب اللہ, یہ رشتے ہیں اور ان رشتوں میں ماں کا رشتہ, بہن کا رشتہ اور سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں پہنے ہوئے ہر رشتے کو دیکھ رہے ہیں. بازوؤں میں رسن ہے, بے چادر ہے, آگے آگے منادی کی ندا ہے, یا اہل الکوفہ آگے ہی مناتے رسول اللہ. اے کوفے کے لوگوں, یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. خدا کسی کو یہ دن نہ دکھائے کہ جس کا بھائی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہو, جس کا بیٹا ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہو اور اس کا غیرتدار گھرانہ قیدی بنا کے لے جایا جائے. ارباب اللہ, ہم مرد ہو کر سخت دل تو ہو سکتے کیونکہ اللہ نے ہمیں صرف پگی میں رکھا, لیکن عورت کو اللہ نے صرف نازک بنایا اور عورت کا سارا معاملہ دل ہی سے وابستہ, کیونکہ عورت جذبات سے عاری ہوتی اور جذبات کا سارا تعلق دل سے ہوتا. ارباب اللہ, سید سجاد جیسا بھائی جو صرف میں مرد ہے اور سکینہ جیسی بہن جو صرف میں صرف نازک ہے, 4 برس کی سکینہ. ارباب اللہ, رشتوں کی حفاظت کیا کرو. نہ جانے کب کدھر سے کون سا رشتہ چیخ پڑے اور کتنی بلاؤں کو دور کر دے, کتنی آفتوں کو دور کر دے. اس لیے رشتوں کو راضی رکھا کرو. رشتے بڑے اہم ہیں. کربلا اسی لیے رشتے پر جنوا رہی ہے. زینب عباس جیسا بھائی,
حسین زینب جیسی بہن، لیلا علی اکبر جیسا بیٹا، ام رومان علی اصغر جیسا بدن، ام فروا قاسم جیسا بیٹا. یہ تمام رشتے کربلا میں کیوں پہچانوائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں رشتوں کے ذریعے تمہیں خاندان آگے بڑھانا ہوگا، مگر کوشش کرنا کہ ان رشتوں کی اہمیت کو گھٹنے نہ دینا. میں اسی جملے کو میں سید سجاد اور جناب سکینہ کے حوالے سے چند جملوں میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تاریخ کہتی ہے نا کہ جب عباس کا خالی علم فرات سے آیا تھا نا، تو سکینہ نے علم تھام کر بابا کے سامنے جملہ کہا تھا، بابا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا چاہیے. ارے بابا ایسا اس جملے کا کر بات سمجھ سکتے ہیں؟ یہ محسوس کر سکتے ہیں آپ؟ بابا پانی نہیں مانگتی، مجھے چچا چاہیے، پانی نہیں مانگتی. اور خدا کی قسم پورے تاریخ مقاتل میں میں نے دیکھا کہ سکینہ شام غریبہ سے لے کر 6 سے 10 سفر تک کی تاریخ شہادت ہے، کہیں نہیں ملتا کہ سکینہ نے پانی پیا. پانی مانگنے کا تذکرہ ملتا ہے، پینے کا نہیں ملتا. اگر پینے کا تذکرہ ہوتا نا تو جانتے ہیں آپ جناب سید سجاد شب شہادت جناب سکینہ، جب سکینہ خوب روئی ہے نا، کسی سے بہن نہیں پائی تو سجاد نے لیا. جب لے کر سید سجاد نے سکینہ کو قید خانے میں چلنا شروع کیا تو جناب سکینہ کہتی ہے بھیا آپ مجھے بتائیں گے کہ پیاس کی کتنی منزلیں ہیں؟ سید سجاد نے کہا سکینہ پیاس کی پہلی منزل یہ ہے، پیاس کی دوسری منزل یہ ہے. ساری منزلیں بتاتے بتاتے سکینہ کہتی ہے بھیا پیاس کی آخری منزل کون ہے؟ سجاد کہتے سکینہ پیاس کی آخری منزل وہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں بدن کے گوشت ہڈیاں چھوڑ دیتے میں کلمہ سینے پہ ہاتھ مار کے سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد سکینہ پیاس کی آخری منزل تک پہنچ چکی ہے. اے بھیا اگر قید خانے میں موت آ جائے تو کسی نرم جگہ پہ قبر بنا. ہاں بات ہے اللہ، یہ بات پہنچ گئی نا، پہنچ گئی. سکینہ اتنی پیاسی ہے، راستے میں آپ نے سنا کہ جب قافلہ چلا ہے تو ام حبیبہ کا گھر آیا. جناب سکینہ نے کہا الاتش، میں زیادہ نہیں بول، الاتش پانی مانگا. اور تاریخ کہتی ہے کہ ام حبیبہ کہتی ہے بیوی آپ کی بچی کو پانی میں پلاؤں گی، کیونکہ میں نے اپنے مولا امیر المومنین علی سے سنا ہے کہ کسی یتیم اور اسیر کی خدمت کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. یہ بچی اسیر ہے. یہ ام حبیبہ پانی لینے گئی، پانی کا آنا ملتا ہے، پینا نہیں ملتا. اور آگے بڑھو، چلتے چلتے ایک مقام وہ تاریخ بتاتی ہے جسے مقام حمص کہتے ہیں. جب مقام حمص پہ قافلہ پہنچا نا تو اب ہمارے یہاں اتار دی گئی، باقاعدہ جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، سب سیلاب ہو رہے ہیں، پانی اسٹاک کیا جا رہا ہے. کیونکہ پانی کی جگہ جب ملتی تھی نا چلتے چلتے تو وہاں قافلہ روکا جاتا تھا. قافلہ رک گیا. جناب سکینہ جناب زینب کی گود سے اتری، ایک کوزہ ہاتھ میں لیے ہوئے، دیکھا ایک مشاق ہے جو فوجوں کو پانی پلا رہا ہے. سکینہ پیچھے کوزہ لیے ہوئے پہنچ گئی، فقط اشارہ کیا، اس نے توجہ نہیں دی. سکینہ نے سوچا سب کو پلا لے گا تو مجھے دے دے گا، اسی آس میں کھڑی رہی، پانی نہیں پیا. پانی کہتی ہے کہ پھر وہ جانوروں کو پلانے لگا. جانور میں پی چکے، اب سکینہ نے کوزہ بڑھایا. مگر جانتے ہیں کیا ہوا؟ 4 برس کی یتیمہ کے سامنے کوزے کا بجائے دہانہ کھول کر سارا پانی زمین پہ بہا دیا. جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا آواز دے کے سکینہ کو قریب بلایا. سکینہ جب گئی نا، اللہ تعالیٰ رشتے کی حساسیت پر یہ آخری جملہ ہے رو لینا تڑپ کر. خدا کی قسم جناب زینب قریب بلاتی ہے، کہتی ہے سکینہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کربلا سے اب تک
जगह पानी को मांगती है। पानी क्यों मांगती है? आपको पानी पीना नहीं होगी का सकीना, जब पानी पीना नहीं है तो पानी मांगने क्यों चली जाती है? जवाब देती है बूढ़ी अम्मा, मैं पानी अपने लिए नहीं मांगती, मैं तो भैया सज्जाद के लिए मांग रही हूँ। बेड़िया पैदल चलते चलते ऐसा दहकने लगती है कि पाँव के बड़े चलते हैं। ए बूढ़ी अम्मा, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो भैया की बेड़ियों पे डाल दो ताकि मेरे भैया को भरा। वसयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुल ख़ल्क़ि यन्क़लिबून इलाहना व सय्यदना व मौलाना व तक़ब्बल मिन्ना बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअदहा व बनीहा व बिहक़्क़ि अइम्मति तिस्अति ताहिरीना मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन। पालने वाले हमारी इबादत उस्मा को कबूल फरमा। परवरदिगार हम सब के नफ्सों पर, हमारी नस्लों के नफ्सों पर विलायत अली को मुस्तहकम करार दे। हमें मवालियान हैदर करार में शुमार फरमा। हमें सिरात मुस्तकीम पर इस्तेहकाम अता फरमा। हमारे गुनाहाना ने कबीरा और सगीरा को माफ फरमा। परवरदिगार इस मजलिस से लेके घरों तक, अस्पतालों तक और हमारी माँ, हमारी बहन नाजो बिन्ते अली शफकत खान साहब, परवरदिगार तुझे वास्ता है सैयद सज्जाद और आले मोहम्मद की गुरबत का, इन तमाम मरीजों को शिफाए कामिला आमीन। परवरदिगार यहाँ जो भी मोमिनीन अपने मुरादे लिए हुए तेरे हुसैन के फर्शे अज़ा पर, तेरे हुसैन की बारादरी तक, शहनशीन तक, अलम के साए तक अपनी हाजतें लेके आए हैं। मौला वो सब मोमिनीन मोमिनात की हाजतों को मकबूल फरमा। हे परवरदिगार हमारी नस्लों का इस्तेहकाम फरमा, सिरात मुस्तकीम पर क़याम फरमा। दुनिया में ज़ियारत हुसैन और आखिरत में शफ़ाअत हुसैन नसीब फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बिलख़ुसूस वो मरहूमीन जिनके ईशान सवाब के लिए मजलिस मुनक़्क़िद है। मौला उनके दर्जात को बुलंद फरमा, हमारे मासूमीन में जगह कराए फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना सल्लल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के ज़हूर में जल्दी फरमा। हमारे किरदार व अमाल को इमाम का सामना करने और उनके नासरीन में शामिल होने के काबिल बना। इलाही तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन।